Good evening, everyone. Today's topic is emotional intelligence. So, first of all, let's see what is emotion. Emotions are not just feeling, they are integral to our psychological well being and social interactions. They motivate us, help us make decisions, and connect us to others. Now, in this picture, we can see different type of emotions: anger, happiness, joy, love, etc. Types of emotions. There are two types of emotions, positive and negative. Positive emotion is hope, pride, empathy, happiness, faith, love, joy, etc. And some are negative emotions, that is regret, hate, fear, shame, guilt, sadness, etc. So now let's start with the emotional intelligence. Emotional intelligence, also known as emotional quotient or EQ. In simple word, we can say that emotional intelligence is the ability to understand and manage your emotions and the emotions of others. According to Raylan Goldman, the five components of emotional intelligence, such as self awareness, social skills, self regulations, empathy, and internal motivation. Let's see self awareness. Self awareness is knowing your strength, limitations, emotions, beliefs, and motivation. And self awareness is the ability to recognize and understand personal moods and emotions and drive as well as their effect on others. तो कहने का तात्पर्य यह है कि सेल्फ अवेयरनेस एक ऐसी क्षमता है जो अपने हमारे पर्सनल मूड को समझने में हेल्प करता है और इमोशन को समझने से जुड़ा हुआ है और यह हमें और हमारे मूड का दूसरों पर क्या अच्छा या बुरा इफेक्ट होने वाला है वो भी समझने में हेल्प करता है। अगर आप यह बातें समझते हैं मीन्स आपके पास सेल्फ अवेयरनेस है। सेल्फ रेगुलेशन. Self-regulation refers to how you manage your emotions, behaviors and impulses. जैसे कि लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस होती है, कभी दुखद घटना होती है, कभी सुखद घटना होती है। तो इन घटनाओं के बीच में एक व्यक्ति को कैसा बिहेवियर करना चाहिए। सपोज हमारे घर में कोई खुशी की बात है, बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, बट किसी पड़ोस में कोई दुखद घटना हो गई है, तो वहां उनके घर जाकर के हमें हैप्पीनेस नहीं दिखाना होता है। अगर आप नहीं दिखाते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो, उस सिचुएशन में खुद को ढाल लेते हो और उनके दुख में शामिल होते हो, वो आपका सेल्फ रेगुलेशन। वहीं पर आप घर से बहुत तनाव में आकर के स्कूल में बच्चों पर, टीचर पर, स्टाफ पर उस फ्रस्ट्रेशन को नहीं निकालते हैं और शांतिपूर्वक काम करते हैं, वो आपका सेल्फ रेगुलेशन दिखाता है। Internal motivation. It is one of the component of emotional intelligence. It is a passion to work for internal results as an inner vision of what is important in life. Okay, so in a joy in doing something, for example, a joy in doing something. तो ये कहा गया कि इंटरनल मोटिवेशन वो है जो एक स्टूडेंट के, एक व्यक्ति के आंतरिक आंतरिक मन से आता है कि मुझे इस काम को करना है। वो काम वो किसी अवार्ड, रिवॉर्ड, लालच, शाबाशी के लिए नहीं करता है, किसी सर्टिफिकेट के लिए नहीं करता है, किसी कैश प्राइज के लिए नहीं करता है। उस काम को वो बंदा इसलिए करता है क्योंकि उसे उस काम को करने में खुशी मिलती है, आनंद आता है। तो यह इंटरनल मोटिवेशन है और यह इमोशनल इंटेलिजेंस का एक कंपोनेंट है। अगर आप मन से हैप्पी हैं, आपके इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं, आपके इमोशंस हर जगह पर अच्छे हैं। Next point is empathy. Empathy is the capability of understanding another person's experiences and emotions. Empathy क्या है कि किसी अन्य व्यक्ति के की भावनाओं को आप समझते हैं
समझते ही नहीं है उसके, अगर वो दुखी है तो उसके दुख को इतना अधिक समझते हैं कि आप उसकी हेल्प करते हो, आप उसको दुख को बांटने की कोशिश। तो ये जो भावना है वो है एम्पैथी, कि हम किसी के दुख दर्द को समझकर उसको साझा करते हैं और उसकी मदद कर देते हैं, उसकी हेल्प कर देते हैं, जिससे उसका दुख कम हो सके। तो यह भावना एम्पैथी कहलाती है। By actively listening to your employees and taking the time to understand their wants and needs, you can boost engagement, build trust, and more effectively push them through challenges. There is one example, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि किसी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय है, किसी इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे एम्प्लॉय है, तो उन employees को actively listening to your employees and taking the time to understand their wants and needs, जो वो रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, उसको क्यों कर रहे हैं, इस बात को समझ कर लो, उनकी जगह पर रहकर समझ कर लीजिए कि जो बोल रहा है उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उससे इस कंपनी का काम कितना आसान हो सकता है। पर जो काम वो 5 घंटे करता है वो 1 घंटे में कर सकता है। उसकी जगह पर खुद को रखकर अगर हम सोचे तो हमें वो बात समझ में आती है, उस जरूरत को हम समझ पाते हैं और उसकी जरूरत को फुलफिल करते हैं, तो उसे एनकरेजमेंट मिलता है और वो उस काम को और अच्छे से करता है। तो द मोर योर टीम फील्स एप्रिशिएटेड, ऐसे में टीम एप्रिशिएटेड फील करती है, द मोर इन्वेस्टेड दे विल बी, which in turn leads to higher moral and stronger company culture. तो एक कंपनी और भी ज्यादा स्ट्रांग बनती है, उसके एम्प्लॉयज स्ट्रांग बनते हैं और उनकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ये एक प्रकार की एम्पैथी है कि किसी ने अपनी जरूरत को आपके सामने रखा, आपने उसे समझा और फिर उसको फुलफिल किया। Social skills. Social skills. There are so many social skills. Positivity, sharing, listening, following directions, empathy, patience, and respecting boundaries. तो किसी भी समाज में, सोसाइटी में लोगों को रहने के लिए इन सभी सोशल स्किल्स की जरूरत पड़ती है, बिकॉज सोसाइटी में हम अकेले नहीं होते हैं, वहां पर एक ग्रुप, एक कम्युनिटी, बहुत सारे पीपल्स काम करते हैं, बहुत सारे पीपल्स रहते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में, कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते होते हैं। तो सभी के साथ मिलकर ही एक बड़ा गोल अचीव किया जा सकता है, और जब मिलकर काम करते हैं तो इन सोशल स्किल्स का वहां पर इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है। और जैसे कि यहाँ कहा गया है, एवरीवन वांट्स समवन विद गुड सोशल इंटेलिजेंस ऑन देयर टीम, whether they are the smartest or not. Emotionally, why emotionally intelligent people consider everyone's strengths and weaknesses. Emotionally intelligent people consider everyone's strengths and weaknesses. They are great at working through conflict and truly enrich team. So, guys, we will start experiment on emotional intelligence. So there are a link, I have given a link, and this link I'm going to share on chat box, and you have to click on this link, then link will be open and you will see this type of questionnaire. You can see this type of questionnaire. This is a emotional intelligent test format, and there are 40 statement. 40 statement, and two options are there. There is no right answer or wrong answer. Read this statement and click only one option. Likewise, you have to solve entire questionnaire. And when you complete this questionnaire, you can see there is score test button. जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो पीछे साइड में
below side में score test button है. You have to click on that. Then you can see your score. Your score in the four areas. The four areas of emotional intelligence. You will get your score in the four areas of emotional intelligence and relationship management. Four areas of emotional intelligence: self-awareness, self-management, social awareness, relationship. Now let's see. आपने अपना स्कोर देख लिया है. आपको there are four areas और four areas में आपको मार्क्स मिले हैं out of 10. Out of 10, someone got 7, someone got 6, someone got 5, and someone got 10 out of 10, and someone got 7, 9 marks in any one area. So आपको ध्यान से आपके स्कोर देखना है और स्कोर देखना है. If you got below 5 in any area, you got below 5 in any area, तो वो जो पार्ट है वो आपका वीक पॉइंट है. फोर एरियाज में से जहां पर आपको बिलो 50% मार्क्स आते हैं वो आपका वीक पॉइंट है, और जहां पर आपको अबव 50% आते हैं 6, 7, 8, 9, 10, तो वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट. तो आपको ये एनालाइज करना है वीक पार्ट और स्ट्रॉन्ग पार्ट और वीक पार्ट को एनालाइज करने के बाद हम कुछ स्ट्रेटजीज देखेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव इमोशनल इंटेलिजेंस. इफ आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस रिजल्ट आपको मिला है, ये मैं कहूंगी कि वो परमानेंट नहीं है. आज जो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है वो फिक्स नहीं है. यू कैन इम्प्रूव योर इमोशनल इंटेलिजेंस. जो भी एरिया वीक आएगा, कम परसेंटेज आएंगे, उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं. ये जो अपना इमोशनल इंटेलिजेंस स्कोर आता है वो हमेशा के लिए फिक्स नहीं होता है, हमेशा चेंज होता रहता है. जैसे जैसे आप और ज्यादा पढ़ाई करते हो, और ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, और ज्यादा थिंक करते हो, तो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस आप बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यूज करके आप इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. बढ़ाने के लिए हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देखेंगे, आइडियाज देखेंगे. लाइक सेल्फ अवेयरनेस इम्प्रूव करना है तो फर्स्ट ऑप्शन इज मेक पीस विथ योर पास्ट. हर किसी इंसान का एक पास्ट है. अगर आप अडल्ट हैं, 30, 40, 25 एज है, तो एक पास्ट है हमारा. और वो बीते 20 इयर्स में जरूर कुछ सुखद घटना घटी होगी, कुछ दुखद घटना घटी होगी. तो सुखद घटना जब होती है लोग बहुत हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं, और थोड़े दिनों तक उसको याद रखते हैं, ऐसे माना गया है. बट जो दुखद घटनाएं होती है उसको लोग बार बार याद करते हैं. ऐसा देखा गया है कि उसको लोग बार बार याद करते हैं, ये ऐसी घटना हो गई थी, फिर कुछ सालों के बाद फिर उसको याद करते हैं, फिर तो उसको दुखद घटना जिसने दुख पहुंचाया उसे बार बार याद करके क्यों दुखी होते हैं बार बार. इसलिए कहा गया है मेक पीस विथ योर पास्ट. जो हो गया गुजर गया, कैन नॉट चेंज दैट. हम अपने प्रेजेंट को बहुत बेहतर बना सकते हैं, पास्ट को वी कैन नॉट चेंज, वहां हमारा बस नहीं. तो हमें क्या करना है, उन बातों को हो गया तो हो गया ये मानकर चलना है और प्रेजेंट में जीने की कोशिश करना चाहिए. जिससे क्या होगा, हम अपनी आज की स्ट्रेंथ, आज की लिमिटेशन, आज क्या सोच रहे हैं, आज हमारे पास कितने सोर्सेस है जिससे हम अपनी प्रोग्रेस कर सकते हैं, वो हम सोच सकते हैं. नेक्स्ट थिंग, नो योर रिलेशनशिप पैटर्न. हमें ये इस पर विषय पर थिंक करना चाहिए कि मेरा रिलेशनशिप पैटर्न क्या है. किन लोगों से मैं बहुत जल्दी घुल मिल जाती हूँ, फ्रेंडशिप करती हूँ, किन लोगों से मुझे फ्रेंडशिप करने में बहुत टाइम लगता है या नहीं हो पाता है, या उनके साथ काम करना कंफर्टेबल नहीं. ऐसे कौन से लोग हैं. तो इस बात पर थिंक करने से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा रिलेशनशिप पैटर्न क्या है. हमारी दोस्ती लोगों से बहुत जल्दी हो जाती है, मेरी दोस्ती सभी लोगों से हो जाती है. किसी कोई बोलेगा कि अ, मुझे बहुत टाइम लगता है फ्रेंड बनाने में, पर जब बन जाते हैं तो परमानेंट ही बन जाते
सभी के अलग अलग विचार होंगे, पर उस पर थिंक करके हमें वो जान लेना चाहिए अपनी बात। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स हम कहीं पर अपने इमोशंस को, अपने बिहेव को कैसे संभालते हैं। और नेगेटिव सिचुएशन में मोस्टली ये बात होती है कि हम कैसे संभालते हैं, हम कैसे पेश आते हैं। किसी सडनली हम खुशी खुशी जा रहे हैं और सडनली कुछ हो गया, तो हम कैसे मतलब डर जाते हैं, या फिर घबरा जाते हैं, रोने लगते हैं, या फिर अपना धैर्य बनाए रखते हैं। ये धैर्य बनाकर शांति से काम करते हैं, जिससे हम मुसीबत से निकल भी जाते हैं। तो ऐसा होना चाहिए, जिसको हम सेल्फ मैनेजमेंट बोलेंगे। और इस सेल्फ मैनेजमेंट पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए देयर इज सम पॉइंट माइंडफुलनेस रहो और मेडिटेशन करो। तो हमेशा माइंडफुलनेस होना चाहिए, और मेडिटेशन के कई तरीके हैं योगा मेडिटेशन के। मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे क्या होता है, हमारे अंदर स्फूर्ति बनी रहती है और हम नेगेटिव थिंग्स को निकाल देते हैं और पॉजिटिविटी आती है। तो ये एक प्रैक्टिस की चीज है, एक दिन में नहीं आती है। बार बार हमेशा कंटिन्यूटी में करते रहेंगे तभी मेडिटेशन के फायदे होते हैं, और वो करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स है बहुत सारी, कि आप बहुत स्ट्रेस में हो तो आपको स्ट्रेस दूर करने के लिए आपके लिए क्या सुटेबल है, आपको क्या पसंद है। हाँ, सम पीपल्स लाइक म्यूजिक। म्यूजिक सुनकर उनका स्ट्रेस कम होता है। सम पीपल सोचते हैं कि हम किसी अपने खास फ्रेंड से मिलेंगे, उसको शेयर करेंगे, तो उनका स्ट्रेस कम होता है। कुछ लोग किताबों में मन लगाना पसंद करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उससे स्ट्रेस होता है। जिसका जो शौक हॉबी है, वो उस अपनी हॉबी की तरफ जाते हैं, तो उनका स्ट्रेस कम होता है। एंड मेंटेन हेल्दी ईटिंग। हमेशा हेल्दी ईटिंग, सेल्फ मैनेजमेंट की जरूरत कहाँ होती है, जहां हम एक हैं और हमारे पास काम अनेक है। काम बहुत सारे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी है। ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, सब देखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वहीं पर लोगों के इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहते। किसी को भी भड़क जाएंगे, उसका खिलाना, फिर उसको बुरा लग जाएगा, बोलेंगे, कंप्लेन करेंगे, ये होगा। तो जब इतने सारे हमारे पास काम है, तो जरूरी है कि हम हेल्दी रहें। और हेल्दी रहने के लिए हमें हेल्दी फूड लेने, हेल्दी ईटिंग करनी है। यू आप हेल्दी फूड खाते हैं और हेल्दी रहेंगे, तो आप फिर हर काम को एक्टिवली संभाल सकते हैं, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस किसी के सोशल अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है, इट इज सोशल एनिमल। वो अकेले कोई कहीं पर उसकी सारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता है, और अकेले किसी इंस्टीट्यूशन में, कंपनी में काम नहीं करता है। बहुत सारे लोग होते हैं वहां पर, तो सबको मिलके एक टीम वर्क करना होता है। तो टीम वर्क करने के लिए हर कैटेगरी का इंसान है, कोई ऑफिसर लेवल का है, कोई वर्कर है, कोई प्यून है, कोई कुछ और है। तो बहुत सारे कैटेगरी में है, बट हमें सबसे काम है। सब मिलकर काम करते हैं तो एक बड़ा काम कंप्लीट होता है। इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय है, वो है अंडरस्टैंड नॉन वर्बल सोशल सिग्नल। अचानक काम करते करते किसी बहुत अच्छा काम करता था, पर 2 दिनों से कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है कि वो काम नहीं कर रहा है, तो उसके नॉन वर्बल सोशल सिग्नल्स को पढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि किसी को कोई सडनली प्रॉब्लम हो गई, तो वो शेयर भी नहीं करता है। और शेयर नहीं करता है, अपने काम में लगा रहता है, बट काम भी नहीं हो रहा है, शेयर भी नहीं हो रहा, बिकॉज वो क्या है, टेंशन में है। तो वो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ही समझ में आएंगे। फेशियल एक्सप्रेशन से समझने के बाद हम उससे मिलकर उससे पूछ सकते, उससे बातें कर सकते, और फिर समझ में आएगा कि इसको ये दिक्कत है, इसलिए इसका काम नहीं हो। अंडरस्टैंड नॉन वर्बल सोशल सिग्नल्स इन द क्लासरूम। बच्चों के जब हम पढ़ाने जाते हैं एज अ टीचर, बच्चों के साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। वहां भी ये समझना जरूरी है कि कौन सा स्टूडेंट कल तक बहुत एक्टिव था, आज चुपचाप बैठा है, तो क्यों बैठा है। कोई एग्रेसिव हो रहा है, तो क्यों हो रहा है। कोई बहुत अच्छे आंसर देता था, पर 2 दिनों से नहीं दे रहा है, तो क्यों नहीं दे रहा है। फर्स्ट
तो सोशल सिग्नल, नॉन वर्बल सोशल सिग्नल से ही समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उससे बात करके हम जानते हैं। नेक्स्ट थिंग, डेवलप अ पॉजिटिव व्यू ऑफ अदर्स। डेवलप अ पॉजिटिव व्यू ऑफ अदर्स। कहीं भी काम करने के लिए जब हम कुछ बड़ा करते हैं तो 10 लोगों की टीम है, तो 10 लोग अपने अपने व्यू देते हैं, हम इस काम को ऐसे कंप्लीट करेंगे, बस ऐसे। तो जो लीडर है, जो सुपीरियर है, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने जो बोला दैट इज फाइन, फुल एंड फाइनल वही हो सकता है दूसरा जो सजेशन दे रहा है वो भी सही हो, वो भी अच्छा हो, ऐसा हो सकता है। तो उसके विचार भी, उसके थॉट्स भी सुनकर लेना जरूरी है, सुनना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अंडरस्टैंड बेसिक ह्यूमन इमोशनल नीड्स। बेसिक ह्यूमन इमोशनल नीड्स क्या होते हैं? ये है कि हर स्टूडेंट को वेरी गुड सुनना पसंद है, यू आर अ गुड गर्ल, यू आर अ गुड बॉय, सुनना पसंद है। स्टाफ को भी सुनना पसंद है, यू आपने एक अच्छा काम किया, यू डिड अ गुड जॉब, वेरी नाइस, वेरी वेल, शाबाश, कीप इट अप। ये सभी जो वर्ड है, हम ह्यूमन बींग्स को सुनना हमेशा हम पसंद करते हैं। कोई अप्रिशिएट करे, कोई मोटिवेट करे, कोई शाबाशी दे, कोई स्टार दे हमको, कोई मेडल। तो ये सभी हमारे बेसिक ह्यूमन इमोशनल नीड्स हैं, ये होने ही चाहिए। इन द क्लासरूम हो, इन द स्टाफ रूम हो, एनी इंस्टीट्यूशन, एप्रिशिएशन होना ही चाहिए। से सोशल अवेयरनेस बढ़ता है, सोशल अवेयरनेस बढ़ेगा और फिर अच्छा काम होगा। नेक्स्ट थिंग, लास्ट पॉइंट इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप बनाना और उसको बनाए रखना एक मुश्किल काम होता है लोगों लोगों में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में। और अगर अगर आपको फील्ड वर्क मिला है, फील्ड वर्क रिलेटेड आप काम करते हो, फील्ड वर्क आपकी जॉब ऐसी है जहाँ पर फील्ड वर्क ज्यादा है, तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट वहां पर बहुत अ, जरूरी है। और जरूरी है क्योंकि आप सोशल टेक्नोलॉजी एरा है और आप कहाँ कहाँ पहुंचेंगे। एक जगह बैठकर कई काम आप फोन करके भी करवा सकते हैं, अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं लोगों से तो इस रिलेशनशिप मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। सिर्फ बोलते रहना, अपनी सुनाते रहना, अपनी सुनाते रहना जरूरी नहीं है। क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। लोगों की बातों को ध्यान से सुनने की भी प्रैक्टिस कीजिए। रिलेशनशिप तभी मेंटेन होता है जब हम दो लोग बातें कर रहे हैं तो मुझे भी बोलने का मौका मिला, मेरी सामने वाला सुनेगा पर वो भी कुछ कहना चाहता है, वो मुझे सुनना है। जब हम दोनों ही सुनेंगे तो हमारे रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं। कम्युनिकेट इफेक्टिवली। जब भी आप बातें करो तो कॉन्फिडेंटली, इफेक्टिवली बातें करना है, लोगों से क्लियर बात करना है, वहां फिर आकर बात नहीं करना है, जिससे आपकी बातों का कोई दो तरह का अर्थ नहीं निकलना चाहिए। क्लियर अर्थ निकलना चाहिए, सामने वाला आपकी बातों के अर्थ को अच्छी तरह है, हम अच्छा बोल रहे होते हैं, वो समझ लेता हमारे लिए बुरा बोल रहे हैं, और वहां पर रिलेशनशिप खराब होते हैं। देन अंडरस्टैंड बेसिक ह्यूमन इमोशनल नीड्स। हमने पहले भी बात की है कि रिलेशनशिप बनाने के लिए भी इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हम बेसिक ह्यूमन इमोशनल नीड को बनाए रखें, लोगों को अप्रिशिएट करते रहें, लोगों की अच्छे काम को हमेशा सराहना करते रहें, को एहसास दिलाते रहें कि सचमुच आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा है, वर्थ है, आप बहुत मेहनत से कर रहे हैं, और आपकी मेहनत की वजह से ही हमारा हमारा टीम वर्क कंप्लीट हो रहा है। Okay? So we have completed emotional intelligence topic in experiment on emotional intelligence. Thank you.